2020 सबके लिए एक बहुत मुश्किल साल रहा। None of us had ever experienced anything like this before. शुरू में तो सब कुछ सरीर लग रहा था, सब लोग लॉकडाउन में, चलते चलते सब कुछ बंद हो गया and none of us knew how to cope with this. पहले हफ्ते 10 दिन सबने बड़ा नेटफ्लिक्स एंड चिल किया। इन्फोर्स छुट्टी का पहले तो मज़ा आया, फिर बोरियत शुरू हो गई। धीरे धीरे टाइम काटना मुश्किल हो रहा था। आई रियलाइज समवेयर माय मेंटल पीस वाज गेटिंग डिस्टर्ब। खुद की पढ़ाई नहीं कर रहा, बट बाय एंड लार्ज आई डोंट जनरली स्ट्रगल विद मोटिवेशन। आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड हैप्पी बाय फॉलोइंग माई इंटरेस्ट्स एंड पैशंस। जिम जाना, रन्स के लिए जाना अलाउड नहीं था, तो होम वर्कआउट शुरू कर दिए। गिटार से अपना पुराना प्यार रिकिंडल किया। इनफैक्ट अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कोरोना कवर्स नाम का पैरोडी सॉन्ग्स का चैनल भी लॉन्च किया। बट वी हैड टू स्टॉप बिकॉज लॉकडाउन खुलने के आसार लग रहे थे एंड वर्क वाज गोइंग टू पिक अप। फिर से अपनी हाफिजात जिंदगी में रूटीन बनाना शुरू किया, लेकिन काम के अनसर्टेनिटी ने फिर से मेंटल पीस भंग किया। ऐसा लगने लगा कि मैं उस चींटी की तरह हूँ जो हर दिन दीवार चढ़ने की कोशिश करती है बट फेल होके गिर जाती है। एंड द सर्कमस्टांसेस वाज सिंपली नॉट इन माय कंट्रोल। देखते देखते आधा साल निकल गया। बट कम सितंबर, pun intended, the dread was back. मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला कि why am I still unhappy? मैं गिटार बजा रहा हूँ, गा रहा हूँ, पार्टीज कर रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन, वाइफ के साथ गप्पे, रिलीजियसली घर पे एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, बट समथिंग वाज मिसिंग। Then I realized मेरा सबसे बड़ा पैशन ट्रैवल है। I've been an avid biker and a trekker all this while and I've been doing weekend rides and treks, but वो सब बंद हो गया। Now with the lockdown being eased, मूवमेंट तो खुल गया था, बट सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न था अभी भी। गाड़ी खरीदने की प्लानिंग तो हमारी चल रही थी। I fast tracked this and lo and behold हमारी ड्रीम गाड़ी क्रेटा घर आई। Now buying a car is a big decision, but not really a life-changing one in this day and age. गाड़ी डिलीवरी की डेट पास आ रही थी and I noticed how my excitement was growing by the day. I was spending more time making plans of where to go and what to do as soon as the car is delivered, and noticed I am not thinking negative thoughts anymore. Ambitious plans बन गए। My wife and me were tired of being holed up in the house and doing just video calls with friends and family. तो बना लिया एक epic road trip का plan. We were going to drive from Mumbai all the way to Dehradun to catch up with family, and on the way explore some places and surprise some friends. So join me on my adventure in claiming my happiness back. This is Shubham. I'm a vlogger, traveler and a musician. Join me on my quest to reclaim my happiness. What's up guys? It's been a while that I've put up a video. This is going to be a vlog. This is going to be a long vlog of a long drive. It seems like we got the new car only with the purpose of taking it for the long drive that we were planning all along. So it's 23rd of December 2020. It is 8:22 a.m. It's going to be a 4-day drive to Dehradun, and we are starting from Mumbai right now. We go to Vapi, we pick up Avichal and Malvika from there. We stay there today and tonight. We leave tomorrow morning for Udaipur. We make a stay at Udaipur for a day. We don't intend to drive on the 25th. That's Christmas. And then 26th again we leave. We reach Gurgaon. We stay at night in Gurgaon, and 27th morning again we leave for Dehradun, and we reach hopefully by noon or early evening. So that is the plan as of now. Our gaadi is already full. The boot space is already full, and we still have to adjust Avichal and Malvika's 2 suitcases inside. It's going to be a little difficult. It's going to be a little challenging, but we'll figure something out. Anyways, let the adventure begin. It's 24th of December and 6 a.m. We had reached Vapi yesterday itself. कल ही पहुंच गए थे हम वापी,
अराउंड 11:30, 3.5 घंटा लगा क्योंकि क्रैश हो गया था बीच में रास्ते में बिकॉज ऑफ इट देयर वाज ट्रैफिक. सो अभी का प्लान है कि वी लीव राइट नाउ इन अनदर 15-20 मिनट्स. एवरीथिंग इज सेट. कार has been wiped clean with a microfiber cloth. We are ready to leave and set for our next leg of the journey, which is we are going to travel almost 580 kilometers to Udaipur. So I'm gonna keep you posted. एक चीज़ गर्ल्स की पहले से ही डिसाइडेड थी कि उदयपुर जाएंगे तो पलेशियल होटल में ही रुकेंगे. अब बिलीव मी व्हेन आई से आई वाज नॉट इवन श्योर इफ इट वाज अ वर्ड, बट इट इज़. पलेशियल मतलब पैलेस लाइक, महल के जैसा. सो आफ्टर मच डेलिब्रेशन वी चोज स्वरूप विलास और हमारा डिसीजन एकदम सही और सटीक था. स्वरूप विलास रात में जितना सुंदर लग रहा था, दिन में भी उतना ही खूबसूरत था, और जितना खूबसूरत उतना ही अफोर्डेबल भी. जस्ट लुक एट इट, सिंपली अमेजिंग. Situated opposite Lake Swaroop Sagar, the whole atmosphere of this hotel was serene and one of calmness. काफी शांत सी फीलिंग आ रही थी, अच्छा सा लग रहा था. सो आज का प्लान था सिटी म्यूजियम का, तो ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े पैदल. उदयपुर के इस सिटी पैलेस को बनने में 400 साल लगे और इसे बनवाने की शुरुआत की थी महाराणा उदय सिंह सेकंड के द्वारा सन 1559 में. मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी 568 में पहले नागदा थी, जो कि उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर है. फिर 8वीं सदी में इस कैपिटल को चित्तौड़ शिफ्ट किया. जब उदय सिंह सेकंड ने राज्यभार संभाला, तब तक चित्तौड़ से कंट्रोल ऑलरेडी मुगलों को जाने लगा था. इसलिए उदय सिंह सेकंड ने उदयपुर को अपनी कैपिटल चूज किया और सिटी पैलेस को लेक पिचोला पे बनवाया, जो बाकी तरफों से जंगल और अरावली पहाड़ों द्वारा सुरक्षित था. ये पैलेस पूरी तरह से ग्रेनाइट और मार्बल से बना हुआ है और इसे बनने में 22 पीढ़ियां लगी. सिटी पैलेस घूमने के बाद हमें लगी अल्टीमेट वाली भूख, क्योंकि इतना तो हमने पिछले 4 महीनों में भी नहीं चला होगा. सो वी डिस्कवर्ड दिस नाइस रूफ टॉप प्लेस कॉल्ड वायरो, जो बिल्कुल खाली था.
जब गर्मी लगे तो गन्ने का रस तो बनता ही है। बार बार चूर चूर नान आ रही है अपने को सामने। इसमें कोई मतलब What is नींबू मसाला डोसा? नेमो नेमो नमो नमो अरे नींबू मसाला सोडा। नींबू मसाला सोडा। पहले इस सीनरी को देखिए और फिर इस रास्ते को देखिए। ऊपर आके लेक साइड डिनर का फील अलग ही था। यह भी आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वाह मैन, बट एक कैच है, हमने जो भी खाना ऑर्डर किया उसमें हमें उतना मज़ा नहीं आया। वो शायद इसलिए कि हमने वहाँ की लोकल डिश ऑर्डर नहीं की। तो आप अगर आएंगे तो लाल मांस ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप नॉनवेज हैं तो। इट इज़ सपोज टू बी रियली यम एंड ऑर्डर समथिंग ट्रेडिशनल। आई एम श्योर यू लाइक इट। इसके बाद हमारे लिए एक सरप्राइज पैकेज वेट कर रहा था। यहां से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। रूम्स डिसेंटली स्पेशियस थे एंड बिल्कुल क्लीन थे। हमारे सामने लोगों ने आके सैनिटाइज भी किया। हालांकि पहले हमें जो रूम दिया गया था उसमें 2 सेपरेट बेड्स थे, बट हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें अपग्रेड दिया एंड इट वाज वर्थ इट। खाना कब खाएंगे? हाँ मतलब खाना बहुत है क्या? राजस्थानी सरजमी में क्यों खा रहा है? राजस्थानी सरजमी में ही खाना है। गुजरात में बहुत खा लिया। पक्का पक्का दाल बाटी खाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल एकदम। मालविका तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? मुझे खाना है कड़ी पकौड़ी। कड़ी पकौड़ी आप खाएंगे? कड़ी पकौड़ी हम कहेंगे सिर्फ पकौड़ी। आप तो पकौड़ी भी नहीं खा रहे थे कल। तो उसमें कड़ी लगी हुई थी ना ऑलरेडी। आप बड़े चूजी हैं। हम तो ऐसे ही हैं, ठीक क्या करें। अब चल आप क्या खाएंगे? हम एवरीथिंग ईटिंग। एवरीथिंग ईटिंग बस क्विकली ईटिंग। यस, जल्दी खिला दो बस। ओके लंच ब्रेक। ड्राइवर हाँ लंच जी, मैडम ब्रेक जी। लंच ब्रेक। ओके, गाड़ी मैडम रोकिए जी। प्लीज। क्या मिलेगा भैया यहाँ पे? यार देखिए हरी हरी खेत है, कुछ भी उठा लीजिए, घास फूस बहुत मिलेगी। वैसे ही वेजिटेरियन ही है।